एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो। चलो ये कर लेते हैं, दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रो। Hi, I'm Akshay. Hi, this is Saurabh, and you are listening to the Founder Thesis podcast. We meet some of the most celebrated startup founders in the country. And we want to learn how to build a unicorn. My name is Ashneer Grover, and I'm the co-founder and CEO at BharatPay. At the time of producing this episode, BharatPay is technically classified as a Soonicorn, a startup that is soon to become a unicorn. But I'm very sure that in the next few months, BharatPay will become a part of the Unicorn Club, and what an amazing feat that would be. Consider this. BharatPay was started in 2018, which means that it will be among India's fastest unicorns. Ashneer Grover, who founded this, talks of how his first round of funding was the market value of his house, and his logic was that in a worst case scenario, I will sell my house to pay back the money I'm taking from early investors. But the clarity that Ashneer had is what has made this success possible. Listen to this conversation as Akshay Dutt finds out what made Ashneer become an entrepreneur after a long and successful career, and how he scaled BharatPay to become the largest UPI payment app for merchants in the country. It was great. I think first semester I was a bit lost because इतनी मेहनत कर ली थी आईटी में घुसने के लिए कि लग रहा था कि अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट which proved to be a fallacy. तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ऐसे ही बस टाइम पास किया. I had a SGPA of 7.3, but thankfully when I figured कि यार कुछ करना है लाइफ में तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा. So from second semester onwards I always hit a 9.5 or above. In fact, I was very infamous to have hit a 10 pointer in the last semester, right? And which is and infamous because by that time most people have either got their masters calls or their MBA calls, right? And no one is willing to put any effort into studies. But I was still sort of peaking towards the end of the thing. And you did an exchange program in France also. I did. So IIT used to have an exchange program, and they used to have a selection criteria. But that selection criteria was pretty awkward because you had to have a CGPA of 8.5 and above to qualify, right? So only the only the more academically inclined folks went there. But it was a great experience because I got to learn French. All our classes were held in French, right? So in the summer of 2002 is when me and five other folks went to INSA Lyon. Lyon is the second largest city of France. And 2 months we were just learning French, and then the course started, and then we did 2 semesters there. But amazing fun. Living in Europe is a different experience. Meeting people from different backgrounds is amazing again. हाँ. तो आपको ये फील नहीं हुआ कि you should like settle abroad, like once you've tasted that quality of life, then it's hard to come back to India? Yeah, so in fact, the whole point of going on exchange was to get a taste of that life, right? But in and पहले मेरे को बहुत शौक था, right? Like even in my mama stays in Canada, and when I was young, I had traveled to Canada and US, and it always sort of felt like another world, right? But when I stayed in France for a year, a few things became clear. कि it's a trade-off, right? It's not an absolute no-brainer kind of a thing. You can make that jump. Your quality of life day one will improve by 200 300%, but then it's a flat line, right? Second thing is it's a bit lonely as well, right? Because socially what you're used to, especially if you've been living in joint families, and then if you have to live by yourself, it can be very, very awkward. I always like going overseas. I've now traveled like 46 countries, but now the pleasure is only going on a vacation, right? Because fundamentally you feel so much comfortable in your own country, and you feel so much in control. And मेरे को ये भी लगता है कि बाहर जाके वहाँ की मार्केट समझना, वहाँ के नुआंसेस समझना, राइट, इज अ लॉट मोर एफर्ट. इंडिया में तो आप पले बड़े हो तो आपको यहाँ पे पता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, एंड देयरफॉर योर बेस्ट आउटकम कैन एक्चुअली कम इन इंडिया रादर देन ओवरसीज.
Right, right, right. Okay. So after IIT, you got straight into IIM. You didn't want to work first. Like you wanted to like get over with studies, or like Yeah, why did yeah, you? Hmm. yeah. No, so I had two options. I had a call for my MS as well in the US, and I got a call from IIM Ahmedabad as well. Then बहुत simple था यार. Like when you're that young, you're not thinking too much. It's like कि पैसे कहाँ बनेंगे, right? And that's what excites everyone. And engineering in 2004, especially if it was not computer engineering or electrical engineering, was not the not the best highest paying option, right? And MBA felt like कि अरे आप MBA कर लो 2 साल invest करो, and all of a sudden you can draw a salary which is like 4x 5x of an engineering salary, right? So that was the call that I took, कि saying कि ठीक है, for first few years you have to make good money, good make uh, do well for yourself, and उसके बाद आप सोच सकते हो कि बड़ा क्या करना है, and therefore went down the MBA route immediately. Okay. So then, after 7 years at Kotak, you decided to move on. What triggered that move? And tell me about the next stint. Yeah, so one thing that started happening is, see, I don't sit idle, right? मेरे को लगता है कि time waste हो रहा है. And what started happening was the deal activity by 2013 started becoming very, very scarce, right? So, number of deals you would close in a year, a good number would be 2 to 3 transactions which you could call your own. It started coming down to almost like 1.5 transactions a year, right? And then I said कि 7 साल हो गए, 10 डील्स कर ली हैं $3 billion की. You have looked at multiple industries, you have looked at multiple products. और क्या सीख लेंगे यहाँ पे, right? And then it was like the 7 year itch saying कि and the other thing was I was the only guy around who had stayed at the same place even 7 years after joining from campus. तो तो बहुत मज़ाक उड़ता था कि यार तुम तो अनएम्प्लॉयबल हो इसलिए तुम यहाँ पे अटके हुए हो। So Acha, so okay. just to get that tag away maybe, or just for the heck of it, I think I decided to move on and said कि ठीक है यार कुछ और करना पड़ेगा, because Kotak is a great place. I loved it. I still love what bankers do, but it was the only thing I had done, and therefore stagnation आ गया था. And so therefore in 2013 is when I moved to Amex. Hmm. Okay. And what did you join Amex for? Like what role? So Amex was an adjoining role. So I was responsible for investing in Indian startups, especially the ones in payment space. Because back in the day, fintech कभी term coin नहीं हुआ था. Most of the people who had just started doing their own startups were doing payment startup, right? And my job was as head of corporate development for Amex in India to look at opportunities where I could put Amex money to use. So I used to report to this gentleman called Sanjay Rishi, who was the India country head of Amex. And simple mandate: go and speak with startups, figure out what they're doing, and then let's see where to put our money behind. But how does this benefit Amex besides maybe a possible ROI on the money? Yeah, so it's also about can Amex network be used, or can the investment be used to give a different experience to Amex customers, right? Uh, Both on the consumer side and the merchant side. So that is the basic thing beyond the just of course the return on investment itself. Hmm, 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 hmm. Okay. And this is where you also got your first taste of the payment industry with MobiQuick investment. Yeah, absolutely. So while I was there, I had met almost 100 founders of different startups. So I got started getting a very good sense of where the market is. लोग असली में कर क्या रहे हैं, बनाना क्या चाह रहे हैं. In fact, I had evaluated some 8 transactions while I was at Amex. I had looked at MobiQuick, and MobiQuick is what I had led the round along with Sequoia. This was their Series B. Um, and I had also looked at Paytm incidentally, right? So this was when Vijay was doing the Alibaba round. So
Vijay and Madhur both had come to our office in Amex to pitch to us for Amex to invest money. I'd also looked at Pine Labs. So all the big guys you hear about nowadays, right? At some point of time during those 2 years, I had evaluated for an investment at different round stages. Okay. Why didn't the others materialize, like Paytm and Pine Lab? So Pine Labs was because I by the time I picked the conversation, I decided to move on. Um, I think PTM, with Vijay, it's very simple. He's a great individual, right? Like he's a force of nature. I keep telling people, compete with him as a competitor, but respect him always. Uh, uh, and even back in the day, I used to love him, right? मेरे को लगता था कि यार कोई लड़का फोड़ेगा तो ये फोड़ेगा मतलब the sheer energy he had and the sheer amount of ideas he had was unparalleled. And I was very supportive of him. It's just that the way he was operating, right, and the Amex view of world were slightly divergent, right? Amex is all about, do it slow, do it proper, and Vijay was do everything fast and break everything, right? So I think it was hard to marry the two. It was very dysfunctional marriage, very frankly, even if I look back. But personally, I loved Vijay. In fact, not a lot many people know when Madhur, who is his CFO now, used to be at Citibank and used to cover me a lot. So Madhur had one day asked me कि अगर तेरे को किसी लाला पे पैसे लगाने होंगे तो तू किस पे लगाएगा, right? And I told him, बॉस विजय शेखर शर्मा पे पैसे लगा दे, उसको जितने पैसे देने हैं शेयर वेयर पे कुछ भी मत मांग, तू बस पैसे दे दे उसको. And incidentally, 2 months after that, Madhur had joined Vijay, right? So then only then I realized actually he was doing a ref check with me कि यार मैं विजय को करूंगा तो is it a good decision or not? And why did you why were you bullish on MobiKwik? Like, what did you like about MobiKwik? So MobiKwik, what I liked about them is that they were the only other player other than Vijay back in the day, right? So there was MobiKwik and there was Paytm, right? Uh, Yeah, yeah. and the other thing was that Bipin and Upasna were very clear that they wanted to build a profitable closed loop business, right? Now, some of the things panned their way, some of the things panned differently over time. But What do you mean by closed loop? Sorry. मतलब उनको अपना वॉलेट बनाना था, मोबीक्विक एज अ वॉलेट ही बनाना था, राइट? एंड उनको ये क्लियर था कि वॉलेट में अंदर पैसे आएंगे और बाहर जाएंगे एंड वो बीच में स्प्रेड बनाएंगे अपना, राइट? एंड अनलाइक पेटीएम, they were very clear they would make it slow and gradually, right? As against overnight and break everything, right? Kind of a view. And both of them had amazingly great credentials, right? By the way, so they're very good friends even now. So that's why when I said कि नहीं यार इन पे इतना early तो bet ले सकते हैं, and in fact, from at the level Amex put money to where they are now, even it's multiple times return already. Okay. 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 So these experiences must have given you a itch to join a startup yourself instead of being on the other side of the table where you are evaluating and funding startups. Is that why you joined Growers? एब्सोल्युटली यार. सो आई थिंक इतने फाउंडर देख लिए थे कि वो गॉड वर्शिप चला गया था कि यार मतलब ऐसे नहीं लगता था कि कोई कुछ कुछ स्पेशल है. तो ऐसे लगने लग गया था यार ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क एंड टेकिंग द प्लंज. So around early 2015, Albinder, who's a batchmate from IIT, he was working on Growers. So he came to me and said कि यार तू मेरा बिजनेस प्लान बना दे, डेक बनवा दे और मेरे पैसे रेज करवा दे. सो आई सेड ठीक है यार मैं ट्राई कर लेता हूँ, मतलब मेरे को भी पता नहीं कैसे रेज होंगे बट ट्राई करते हैं. सो इनफैक्ट Growers business plan, the deck, everything was made in Amex office. We used to stay back, late after work, and we used to work on it. And before we knew, $10 million were raised from Tiger and Sequoia. And How? Like, without any execution, that got raised? Like, on the concept कि यार we knew logistics,
and hyper local logistics. And now we are going to use that to our advantage and become a consumer side company. एंड ब्रॉडली हम उनको ये बोलते थे कि आप यूएस में देख लो इंस्टाकार्ट बड़ा बन रहा है, हम इंडिया का इंस्टाकार्ट टाइप बना रहे हैं कुछ. तो and so we raised 10 million, and there was Albinder had a very skeletal team till then, right? So he said कि भाई तू आजा, तू देख ले, तेरे को सब कुछ पता ही है अब, and तू संभाल ले. So I joined him as the CFO. I was the first major employee to actually join him. Um, and then from there, one thing led to the other, and things became really big for us. Hmm. Okay. Okay. So I want to understand more on the Grofers fundraise. Uh, at this time, there was like zero execution, or for example, was an app up and ready or something up and ready, or it was just on the back of a PPT that the fundraise happened. No, so we had done a beta version of the app, and we were only already delivering in Gurgaon. So we used to deliver on behalf of chemists. We used to deliver on behalf of some certain kirana shops. But we were a B2B play. We were not facing the customer. And the customer app we had made ready, right? In fact, when the first day I joined, we that day we had done highest orders, which were 30 orders for the day, right? तो हमको लग रहा था यार कि हमने तो नया न्यू हाई हिट कर दिया आज. So that is how early I sort of joined them. And your role was largely about fundraise, investor relations, and like help powering the growth in a way. Yeah, it was more to make sure that whatever we're doing is done with certain level of sanity. So I was basically looking at everything which was commercial, legal, finance, and of course fundraise, right? So those were the four things I used to look at, and then over time, so I almost became a co-founder to Albinder, right? So anything that needed to be sorted would come my way. Hmm, hmm, hmm. So, why didn't you continue in that stint? It must have been pretty exciting because Grofers has been through a roller coaster of a journey. So, what made you want to move on? या सो यार उसमें दो चीज़ें थी. एक तो मैं वहाँ पे 2.25 साल था ऑलमोस्ट, राइट? एंड दोज वर वेरी इंटेंस टाइम, राइट? लाइक बिकॉज़ आपने 30 ऑर्डर से शुरू किया था और जब मैं छोड़ा था तब 30,000 ऑर्डर होते थे, राइट? So you had seen that 1000x growth journey in 2.5 years. And we had also raised a lot of money. We had raised almost $170 million while I was there, including from the likes of SoftBank. एंड हम बिजनेस शुरू में मार्केट प्लेस था, हमने उसको इन्वेंट्री लेट भी बना दिया था ओवर टाइम. But one of the things which was itching me was that my equity was not being sort of upped, right? Because for the amount of value I was adding, right, my equity promise was not being put into place in terms of actual grant of ESOPs, right? And I had these conversations, and every time it would be saying, "दे देंगे यार, तू कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं," types, right? But I said कि ठीक है यार, कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा, तो then let's put it on paper, and why have an element of doubt even in my head, because I am willing to put 110% as I have demonstrated, right? Um, uh, तो एक मेरे को वहाँ पे थोड़ा हिचक लगा कि इक्विटी देने का इंटेंशन वर्बल था, बट कभी वो एक्शन में नहीं आया. द अदर थिंग नाउ इन हाइंडसाइट व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग इज कि यार समवेयर मेरे को भी लगने लग गया था कि यार मे बी इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू हैड दी डॉन दी ऑपरेटर हैट, राइट? मतलब कर लिया 9 साल दूसरों लोगों के लिए काम, 2.5 साल दोस्त के लिए काम भी कर लिया. But maybe now I had learnt enough from Albinder ki what does it take to create a startup, and maybe that was also another itch which was not verbalized within me, right? It was a combination of because एकदम एक चीज तो क्लियर था कि कुछ करूंगा तो तोड़ू फोड़ू करूंगा. अब वो कम इक्विटी के लिए करने का कोई मतलब नहीं था, राइट? तो ऐसे ठीक है, स्टेप आउट करते हैं, फिगर आउट कर लेंगे यार क्या करना है. Did you meet Masa also when you were doing the SoftBank fundraise? I met Nikesh. Nikesh used to be that time, but not Masa. Okay, 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 okay. So after this, you joined like a
very traditional business of PC Jewelers. What was that experience like? हाँ यार, तो बाहर निकलने के बाद 3 महीना तो मैं बहुत ही कुछ भी नहीं किया। आई वाज़ जस्ट स्पीकिंग विद पीपल, राइट? एंड मेरे को जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल भी रही थी, मेरे को लग रहा था कि यार इट इज़ इट इज़ ओके, राइट? लाइक मतलब इफ यू बीन द सीएफओ ऑफ ग्रोफर्स, ठीक है, यू गेट अ सीएफओ रोल एनीवेयर टाइप्स था, एटलीस्ट इन अ स्टार्टअप, राइट? बट समवेयर मेरे को लग रहा था कि नहीं यार, कुछ बनाना है, राइट? एंड बट So you wanted an operational role. I needed operational role. And the second thing which was clear to me कि यार कुछ सस्टेनेबल बनाना है, राइट? मतलब मैंने इतना ई कॉमर्स देख लिया था और इतने पैसे फूकते हुए देख लिए थे, राइट, लोगों को, कि विश्वास उठ गया था कि यार किसी का इकोनॉमिक्स बनेगा भी या कभी नहीं बनेगा, राइट? सो आई एक चीज, एक होता है ना कि आप व्हेन यू आर इन अ परफ्यूम शॉप, यू हैव टू स्मेल द कॉफी, राइट, बिफोर यू स्मेल द नेक्स्ट परफ्यूम. So for me, it was like smelling the coffee kind of a event, where I said, okay, PCJ, in fact, I had taken them public back when I was in Kotak, so I had a prior history with them. बट मेरे को ये था कि यार एक करोल बाग में बैठ के एक लाला ने धंधा बनाया, राइट? कोई कोई फैंसी इन्वेस्टर नहीं था, कस्टमर से कमा कमा के बनाया, राइट? ये जो सिखाएगा वो कोई और नहीं सिखा पाएगा, राइट? And therefore I joined him, and there also my mandate was not to be part of the jewelry business. My mandate was to actually build a gold loan business for him, right? Because मेरे को तब तक ये क्लियर हो गया था कि इंडियन मर्चेंट या इंडियन कस्टमर सर्विस के लिए कभी पैसे नहीं देगा जिंदगी में, ठीक है? वो उसको जोमेटो पे 50 रुपये आप चार्ज करोगे, वो स्विगी के ऐप फायर करके वहां से ऑर्डर कर देगा, बट ब्याज के लिए सब पैसा देते हैं. तो आई वाज क्लियर कि लेंडिंग का बिजनेस बनाना है, एंड आई सेड कि ठीक है, दिस इज अ गुड प्लेस टू लर्न द गोल्ड लोन बिजनेस, एंड यू विल आल्सो लर्न how does a typical lala who sits in Karol Bagh thinks, right? And if you look back now for what I do as a business, that thinking is critical, right? That Otherwise, understanding of the customer. exactly. Otherwise, you'll be creating irrelevant products. Hmm, 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 hmm. So did you launch that? Like, क्या हुआ उस business का, the gold loan business? Was very close to launching. I had, in fact, done almost all my homework, and I was there for hardly 6 months, right? But what happened there was that Nirav Modi scam happened, right? Uh, and then the jewelry sector went into a spin of its own, right? And then I realized कि बहुत सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, because core business पे आ गई है अब, तो मतलब expansion तो भूल जाओ. So then I decided to move on, and June 18 is when started working on Bharat Pay as an idea. So how did that evolve as an idea? मतलब initial idea क्या था, और फिर finally when you launched it, what was that journey, if you Yeah, can so tell I me? had actually met with, उस टाइम भी मैं काफी स्टार्टअप्स को मिलता रहता था, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड मार्केट में हो क्या रहा है. एंड आई मेट शाश्वत एंड भाविक इन आईआईटी दिल्ली, राइट? एंड मेरे को लगा 15 मिनट की मीटिंग है, मैं जाता हूँ. मैं 4 घंटे बैठा रहा वहाँ पे उनके साथ. एंड Who are Shashwat and Bhavik? so Shashwat is my co-founder, and Bhavik is the founding team member, right? And both of them were at IIT Delhi back then, right? In 2018. A friend of mine connected me with them, saying that they seem to be keen on doing something called UPI. Seems to be very similar to payments. तू जाके देख ले क्या है, हमको चमकता नहीं है. तो मैंने तो बोला उस टाइम पे यूपीआई लॉन्च हो गया था. यूपीआई लॉन्च हो गया था, बट सिर्फ लोग एक दूसरे को पैसे भेजते होते थे. क्यूआर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था अभी. तो मतलब पेटीएम वाज ऑफरिंग यूपीआई पेमेंट्स. नहीं, पेटीएम भी ऑफर नहीं कर रहा था. पेटीएम तो अपनी क्लोज टू क्वालिटी चला रहा वो था. सिर्फ विद इन योर बैंक ऐप, या वो हाँ, जो तो भीम ऐप है. सिर्फ फोन पे के अर्ली डेज थे, बट फोन पे से लोग एक दूसरे को पैसे भेजते थे, या ट्राई करते थे. गूगल पे भी सोच रहा था आने का, बट मर्चेंट साइड पे तो कुछ भी नहीं था यूपीआई का. सो देन आई मेट देम एंड आई सेड कि क्या करना है. दे सेड कि यार ये यूपीआई जो है, हमको लगता है कि हम मर्चेंट के यहाँ पे क्यूआर कोड लगा सकते हैं, एंड हमारे को कंज्यूमर साइड ऐप बनने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मैंने बोला यार आइडिया तो अच्छा है, मतलब मर्चेंट को एक क्यूआर मिल जाएगा एंड उस पे सारी एप्स ऑटोमेटिकली चल जाएंगी. एंड दे सेड कि ये करना है, बट वी आर टू यंग एंड वी डोंट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द वर्ल्ड. वुड यू वांट टू सॉर्ट ऑफ बी पार्टनर्स? एंड आई सेड कि ठीक है, कर लो. एंड इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर वी वर लाइक
I had already come on board. We were sitting in front of investors. Everything happened like very fast, right? Because it was like just an something waiting to happen kind of thing, right? मेरे को उनसे मिलना था, and then we got into things, and now after that everything has been a blur uh, till now. So again, you raised like pre-launch, or you launched first and then raised? Like, how did the fundraise happen? यार तो उसमें इंटरेस्टिंग था, तो शुरू में ना कोई हमारे को बिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है, उनको लग रहा था पागल हो गए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब काफी इन्वेस्टर को तो मैंने ही बताया कि यूपीआई होता कैसे है, मतलब नाम नहीं लूंगा बट बहुत नामी नामी इन्वेस्टर्स जो इंडिया में हैं, के बॉसेस के हमने यूपीआई हैंडल बनवाए बैठ के कि सर डाउनलोड, फोन पे ऐप डाउनलोड करो या गूगल पे ऐप डाउनलोड करो, अपना डेबिट कार्ड निकालो, ये देखो ऐसे पेमेंट होती है, मतलब वहां से हमको स्टार्ट करना पड़ा। बट काफी लोग तब भी ना उन्होंने हम पे विश्वास नहीं किया, हमको बहुत लटकाते रहे लोग, राइट, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये कौन आ गए हैं, और पेटीएम उसी टाइम $16 बिलियन की कंपनी हो चुकी थी, तो भाई तू तो पेटीएम से भिड़ेगा, और मतलब तू कैसे भिड़ेगा, मतलब वो तो इतनी बड़ी कंपनी है। वैसे यार इनको चमक नहीं रहा है कि पेटीएम क्लोज लूप करने की कोशिश कर रहा है, मैं एक ओपन लूप चीज को मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई सेड कि ठीक है, सो देन व्हाट आई सेड इज कि यार कोई फायदा नहीं है इन वीसी से सिर मारने का, जब तक तुम इनको डराओगे नहीं कि भाई मैं कहीं और से पैसा ले आऊंगा, ये देंगे नहीं, राइट, मतलब एंड दैट इज बीन ट्रू, आप किसी से पैसा मांगने जाओ नहीं देगा, राइट, आप किसी को पैसा मना कर दो तो उसको जरूर देना है, राइट, कि भैया मैं मेरे को तो Okay. पैसा नहीं लेना है, किसी को बोल दो ना, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा देने के लिए, राइट, so I raised 1.9 crores angel from friends and family, and maximum I took from anyone was 25 लाख रुपए, राइट, एंड द आइडिया वाज वेरी सिंपल यार, कि मेरा यहाँ मालवीय नगर में घर है, कोई बोलेगा तो मैं अगर पैसा डूब गया तो मैं बेच के सबको वापस कर दूंगा, राइट, तो एंड दैट इज हाउ द 1.9 करोड़ मैजिकल फिगर आल्सो केम फ्रॉम, राइट, सेइंग कि भाई घर की कीमत 2 करोड़ के आसपास होगी, थोड़ा खर्चे निकाल के 1.9 ही रेज करते हैं, तो वैसे करके रेस करा, एंड देन वी पुट आवर प्रोडक्ट आउट फर्स्ट। तो आजकल थोड़ा आसान हो गया है, बिकॉज इन्वेस्टर कंपनी के पीछे भागती है, तो आजकल आइडिया स्टेज पे ही, और अगर आपने पहले कुछ कर रखा है रिमोटली स्टार्टअप, तो 20-25 मिलियन उठाना इज मार्केट नाउ, राइट, बट बैक इन द डे वी हैड टू एक्चुअली पुट द प्रोडक्ट आउट, गेट द फर्स्ट 1,000 मर्चेंट्स इन, So वो कैसे किया आपने first 1,000 merchants? Like, did you visit kirana stores and all that? Yeah, did you hire people? Yeah, online leads? नहीं नहीं, खुद ही जाते थे यार, खुद जाते थे गैलेरिया मार्केट, नेहरू प्लेस, राइट, कई लोग थे, हम आधा टाइम कोडिंग होती थी, आधा टाइम मार्केट जाते थे, और मतलब दुकानों पे खड़े होके 4-4 घंटे बिता के हमने पहले क्यूआर लगाए हैं, बिकॉज दुकानदार को समझ ही नहीं आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम उनको समझाते थे, उनकी पहली 5 ट्रांजैक्शन उनके सामने खड़े होकर के दिखाते थे, उनके बैंक में पैसे आ गए वो दिखाते थे उनको, तब उनको विश्वास होता था कि हाँ चलो ये चल रहा है, बट बिकॉज वो फ्री था एज अ सर्विस, इट पिक्ड वेरी फास्ट, एंड we started in August, and by September we had even gone to Bangalore as a market. Okay. And you would have hired people? Yeah, again, you personally went to Bangalore and No, so Shashwat went to Bangalore. Me and Bhavik stayed back in Delhi. Uh, I, did a lot of work on bank partnerships, making sure we are hiring people, hiring the sales team. And Shashwat went and set up the new city, right? तो मतलब वहाँ पे जाके एक स्कूटर लिया, स्कूटर में शाश्वत और एक योगी करके होता था लड़का, वो दोनों स्कूटर पे बैठ के बैंगलोर की पहले सड़कें नापते थे, देखते थे कहाँ मार्केट है, कहाँ लग सकता है, लैंग्वेज लैंग्वेज प्रॉब्लम थी बिकॉज हम सब नॉर्थ के थे, तो हम आता नहीं था, बट एवरीथिंग फ्रॉम टेक्निकली स्क्रैच ही करा था। so how many merchants had you onboarded by the time you got institutional investors in? I think by the time we got institutional investors in, we were already at like 20,000 merchants.
And what was the pitch? Like, this was a free service to the merchants. Well, you're not charging. Which was always clear. इंडिया में पेमेंट्स रेवेन्यू इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो. वो जीरो होके रहेगा, राइट? आप कोई नहीं बचा सकता उसको. हम वो लोग. मतलब you were clear on that at that time also. मतलब today of course this is clear, but उस time पे आपको पता था कि ये नहीं, नहीं बिल्कुल चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल ही पता था, बिकॉज जब हम 0% पे क्यूआर बेचते थे, राइट, दुकानदार तो 5 सेकंड नहीं लगाता था वो यूज करने के लिए, राइट. तो हमारे को तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंस्टेंस से क्लियर हो गया था कि अगर आप दुकानदार को पेमेंट फॉर फ्री दोगे, वो यूज करेगा ही करेगा, राइट. वो डिजिटल पेमेंट इसलिए ही नहीं यूज कर रहा है बिकॉज उसका 2% चार्ज लग रहा है. वो इसलिए, अगर आपने वो चार्ज हटा दिया वो खुद सीख लेगा और करेगा. So, so 0% MDR is in fact इंडिया में इंट्रोड्यूस ही हमने किया था, राइट. And we were the biggest proponents. Not many people know, but in fact the government, when it made 0% MDR, we were a case study for them, saying कि there is this company called BharatPay, and in 1 year, 1.5 years, they've grown so big because they've been offering UPI for free, right. एंड देन द गवर्नमेंट सेड कि अच्छा, अगर फ्री करने से इतना ग्रोथ आ जाता है डिजिटल पेमेंट्स में, तो हम ही फ्री कर देते हैं सबके लिए. सो जनवरी 2020 में जो गवर्नमेंट ने 0% MDR करा, राइट, was 1.5 years after BharatPay had already made it zero for the merchant. At that time I think Paytm used to take 2% अगर आप कैश बाहर निकालो into your account. Absolutely. So Paytm used to charge 2% on this. Okay. So okay, so like coming back to your pitch to investors, so you were clear के payment transaction को monetize नहीं कर सकते as a like a transactional cut. So then what was the monetization? So monetization was always clear कि यार lending करेंगे, कि दुकानदार को बस पेमेंट फ्री में दो, उससे आपको उसके कैश फ्लो में आ जाओगे, आपको विजिबिलिटी आ जाएगी कि वो बिजनेस कितना करता है, और उसके अगेंस्ट लेंडिंग करेंगे. सो एज आई कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, आई वाज ऑलवेज कीन ऑन लेंडिंग इवन एट पीसीजे, राइट. द की थिंग आई वांटेड टू डू वाज लेंड, एंड वो प्रिंसिपल क्लियर था यार कि हिंदुस्तान में गुप्ता जी और जैन साहब अपने एम्प्लॉय को भी पैसा नहीं देंगे, कोई सर्विस का पैसा नहीं देंगे, बट ब्याज का पैसा दे देंगे. तो अगर एक बनिया ब्याज का पैसा देने को तैयार रहता है और वो बाकी हर चीज में तुम्हारी अठन्नी चवन्नी बचाने के लिए तैयार बैठा है, राइट, तो उसको वैसी फ्री में चीज दे दो और उससे ब्याज में ही पैसे ले लो ना फिर. Okay, but उसके लिए you need to be an NBFC to lend money, ना? Like, did you set it up as an NBFC? Yeah, we partnered with NBFCs. So वो तो क्लियर ही है, आप इंडिया में लेंडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आपको एनबीएफसी चाहिए. बट we were fortunate enough, and I had a network big enough that we had 4 or 5 NBFCs which were willing to partner with us, right? And therefore we started that piece on partnership. So payments हम करते हैं और जो लोन है वो हमारे पार्टनर एनबीएफसी की बुक्स पे होता है. ठीक है, cool. What was that customer journey like? You know, if he signs up for a free QR code to accept payments, how does he then become a revenue generating customer for you? So yeah, so in our first product, and I would say for the first 6 months, the simple proposition for the merchant was कि आप QR link कर सकते अपने बैंक अकाउंट से, and you can start taking payments within 5 minutes, right? But that was just our foot in the door with the merchant. The real place where we make money is actually lending. So, and in our journey, we were very early into lending. So, by April 2019, right, I had already started lending to the merchants, was just roughly 7 8 months after we started our business. And in that, the logic was pretty simple कि अगर आपका ऑलरेडी एक हिस्ट्री है भारत पे के साथ कि आपने कुछ महीने ट्रांजैक्ट किया हुआ है, हम आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बेसिस पे एक लोन अमाउंट कंप्यूट करते थे और वो आपको दिखाते थे कि आपको अवेलेबल है. दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये तो हो गया कि हमारे सिस्टम में हमको आपके बारे में क्या पता है. दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपका प्रायर हिस्ट्री रीपेमेंट का क्या रहा है, राइट, कि हो सकता है आप मेरे सिस्टम पे अच्छा बिजनेस कर रहे हो बट आप अच्छे रीपेयर ना हो, राइट, एंड वो मेरे को पता Okay, लग like a जाएगा. bad credit score. एग्जैक्टली, वो आपकी ब्यूरो हिस्ट्री से पता लग जाएगा.
सो फिर हमने ब्यूरो हिस्ट्री लेके और जो हमारा इंटरनल आपका स्कोर था उसको मैरी करके लोन के ऑफर्स देने शुरू करे। सो एंड दी अनलाइक द क्यूआर जिसके लिए एक फीट ऑन स्ट्रीट आपके दुकान में जाता था, फॉर द लोन एवरीथिंग वाज डिजिटल। सो आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो वहीं से होता था, ऑफर वहीं ऐप में जनरेट होता है, डिसबर्सल का स्टेटस आपको वहीं पे पता लगता है। अब तो आप वहाँ पे अपना ई-नैच मैंडेट भी सेट कर सकते हैं, राइट? कि अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई क्यूआर पे किसी भी कारण से और हमको आपके बैंक से पैसे पुल करने पड़े, तो उसके लिए भी हम मैंडेट अपफ्रंट ही ले लेते हैं ऐप के अंदर ही। तो फॉर एक मर्चेंट के लिए जिसके पास अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड सामने है, और जिसके पास अपना डेबिट कार्ड भी है ताकि वो ई-नैच मैंडेट भी सेट कर सके, उसके लिए तो लोन अप्लाई करना 5 मिनट का काम है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। एंड ये ईज़ी एक्सेस टू क्रेडिट ही है जिसकी वज़ह से हमारी लोन बुक अगर मैं आज देखूँ तो कुछ सवा 600 करोड़ रुपए की हो गई है, 625 करोड़ और रफली 90 मिलियन डॉलर्स की ऑलरेडी लोन बुक हमारी है। वी हैव 110,000 live loans on the platform. Okay. How do these numbers compare? Matlab, वो 625 crores in a context of other similar companies like. Yeah, so very frankly, similar businesses comparable है नहीं, बट जनरली जो माना जाता है कि अगर आप 100 करोड़ के ऊपर हर मंथ डिसबर्स कर रहे हैं, तो आप एक स्केल के बिजनेस होते हैं। अभी हम हर महीने 250 करोड़ 250 करोड़ डिसबर्स कर रहे हैं इंक्रीमेंटली। सो ये जो अभी सवा 600 करोड़ की बुक है, ये 3 महीने पहले 200 करोड़ की बुक होती थी हमारी। So we are also growing at a very, very good pace. So think of it this way कि incrementally हम 3,000 करोड़ रुपए के लोन हर साल करेंगे अगर हम इवन ग्रो भी नहीं करते यहाँ से, अगर हम कुछ भी नहीं करते, तो 3,000 करोड़ रुपए के लोन हम देंगे, which in the Indian context of small merchants would put us among the top 5 lenders to this segment clearly, right? Uh, अगर मैं ओवरऑल बिजनेस नंबर्स की बात करूं तो वी डू रफली 30 टू 33 लाख ट्रांजैक्शंस अ डे। ओके, वैल्यू वाइज इट्स रफली 140 करोड़ every day on UPI QR itself. That makes us the number one processor offline in the UPI context. एंड अगर मैं ओवरऑल मर्चेंट कॉन्टेक्स्ट में देखूं जहां पे मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मानूं, तब भी दैट मेक्स अस द नंबर 3 प्लेयर इन इंडिया। एंड मच एंड नाउ वी आर मच अहेड ऑफ गूगल पे। सो नवंबर तक हम गूगल पे के बिहाइंड होते थे ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिला के, बट अब हम गूगल पे से भी आगे निकल गए हैं। सो ऑफलाइन में नंबर 1 है, ओवरऑल नंबर 3 है। Okay, so this market share calculation is done. So like if a transaction happens and एक side में Paytm use हुआ, एक side में भारत पे use हुआ, तो both of these get equal credit. Like नो तो मैं ये सिर्फ हम मार्केट शेयर इस तरीके से काउंट करते हैं कि लैंड किसके क्यूआर पे ट्रांजैक्शन हुई। सोर्सिंग का तो अलग मार्केट शेयर है। तो अगर आप कंज्यूमर साइड मार्केट शेयर की बात करेंगे तो वहाँ पे फोन पे और गूगल पे 2 बड़े लोग हैं। उनका 40% मार्केट शेयर है रफली, गिवन एनी मंथ ऊपर नीचे होता रहता है। बट कंज्यूमर साइड पे तो उनका 40% ईच मार्केट शेयर है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कौन से मर्चेंट पे ट्रांजैक्शन गिर रही है, मतलब लैंडिंग पॉइंट क्या है। हाँ। Okay, ठीक है, got it. Okay, and you are almost at a unicorn valuation now. तो how did that funding journey evolve from that initial जो आपने अपने घर की वैल्यू 1.9 करोड़ सोचकर वो रेज किया था फ्रेंड्स एंड फैमिली से to today? Like tell me about that journey. या सो यार हमारे साथ ना फंडरेज अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो काफ़ी किया भी है, बट जिस टाइम पे हम कर रहे होते थे हमको बहुत पेन होता था, राइट? क्योंकि आप ये सोचिए कि जब मैं बिजनेस शुरू भी किया था तब भी पेटीएम $16 बिलियन की कंपनी थी, राइट? फोन पे अपने आप को $9 बिलियन की कंपनी क्लेम करती थी, राइट? सो वी वर ऑलवेज stacked against the Goliaths of the world, right? सो हम जब भी हम फंड रेज करने जाते थे हमारे से एक ही सवाल पूछा जाता था कि बड़ी कंपनी के सामने तुम कैसे टिकोगे, राइट?
So it's always been a very, very tough journey as against the numbers we had, right? I keep telling people कि लोगों को लगता होगा कि मेरे लिए फंड रेज करना आसान है या इतने पैसे रेज कर लिए, राइट? ये फंड रेज करना एक चीज है जिससे मैं अभी भी बहुत पेन होता हूँ, राइट? मेरे को ज्यादा मजा बिजनेस बनाने में आता है, ज्यादा मजा कुछ नया प्रोडक्ट निकालने में आता है या ब्रांडिंग करने में आता है, उसमें मेरे को ज्यादा पर्सनली ज्यादा वैल्यू ऐड लगता है। फंड रेज तो मेरे को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टाइप लगता है। बट हैविंग सेड दैट, थैंकफुली हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर काफी हैं। अगर आप हमारा कैप टेबल देखेंगे किसी फिनटेक के हिसाब से, तो प्रॉब्ली वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप टेबल्स होगा। तो हमारे पास सिक्वोया है, रिबिट, कोट्यू, इनसाइट, स्टेडव्यू, बी नेक्स्ट, एम्प्लो। So not a single Chinese shareholder, thankfully, because it would have gone against us. So an all American lineup in some sense. And I have at least 4 investors who have an ability to write 100 million, $200 million checks even going forward. So इनको अंदर लाना मुश्किल काम था, बट एक बार ये अंदर आ जाते तो बहुत ही हाई कन्विक्शन इन्वेस्टर्स हैं, फिर ये हिलते नहीं है, मतलब तो उस तरीके से थैंकफुली काफी अच्छा कैप टेबल बना हुआ है हमारा। They're with you for the long haul. Yeah. So, and how has the product evolved? So, you started with QR code, then you added lending, and what next after that? There are some other additions also. एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले हमने क्यूआर से शुरू करा, फिर लेंडिंग ऐड करा, फिर लेंडिंग के लिए हमारे को था कि पैसे कहाँ से आएंगे, सो वी स्टार्टेड टाइंग अप विद P2P एनबीएफसीज। सो मर्चेंट्स के पास अब ऑप्शन है कि वो P2P में इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू with our partner P2P NBFCs. Help me understand what does a P2P NBFC do? So P2P NBFC क्या करती है कि आपको ऑप्शन देती है कि आप एज एन इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स को लेंड करें, राइट? सो एंड आप उसमें आपको एक इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जो कि मार्केट में आपको जो बाकी ऑप्शंस है उससे बेहतर होता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म में वी वर्क विद अ कपल ऑफ P2P NBFCs एंड दे ऑफर an opportunity for you to earn up to 12%, right? And the good thing is P2P NBFC की में आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर TDS भी नहीं लगता है, राइट? सो हमारे मर्चेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो अपना पैसा P2P NBFC के पास रखें और उस पर 12% ब्याज कमा लें, राइट? तो आप खुद क्यों नहीं NBFC बने? हमारा भी वो सर अभी तो 30 मंथ्स ही हुए हैं, तो सब कुछ करना है NBFC भी बनना है, बैंक भी बनना है, वो सब कुछ करना है। इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग एज वेल। वी हैव आल्सो अप्लाइड फॉर आवर NBFC लाइसेंस in the last 1 year during COVID. RBI had gone slow on certain jurisdictions. So अगर किसी भी कंपनी का बाहर से पैसा आया है मॉरिशस के रूट से, तो RBI उस पे डिलीजेंस करने पे स्लो था पिछले 1 साल में। So for that reason, us, Jupiter, which is जितेंद्र गुप्ता, या क्रेड which is कुणाल शाह, सबकी NBFCs थोड़े स्लो बर्नर पे चले गए थे। अब कुछ नया क्लैरिफिकेशन आया है, उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से हमको लगता है कि कुछ रिलैक्सेशन मिला है एंड वी विल रीअप्लाई फॉर द NBFC लाइसेंस। बट पूरा इंटेंट है कि RBI से रेगुलेट होके एक खुद NBFC बनना है, रेगुलर भी, P2P भी, एंड इवेंचुअली एक बैंक बनना है, जब भी RBI को लगे कि उनको हम पे कंफर्ट इनफ आ गया है। So is that the reason for looking at PMC Bank? Yeah, it is one of the reasons कि eventually अगर हमको ये लगता है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक छोटे दुकानदार को दे सकते हैं, राइट? और एंड इन अ मैनर जो उसको समझेगा भी और उसको अच्छा भी लगेगा। तो बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट में एक जो हमेशा कंस्ट्रेंट रहता है कि आपको रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंडर ऑपरेट करना पड़ता है। सो NBFC गाइडलाइन एक अच्छी गाइडलाइन है जिसके थ्रू आप लेंडिंग कर सकते हो। द बिगर यूनिवर्सल गाइडलाइन इज द बैंकिंग गाइडलाइन, राइट? एंड स्पेशली हमारे को स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज अनलाइक अदर बैंक्स हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम बिग बिजनेस हाउसेस को लोन देंगे, राइट? हमारा इंटेंशन यही है कि हम एक छोटे दुकानदार को लोन देंगे। सो उस कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारे टारगेट सेगमेंट के लिए बेस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो हमारी इच्छा है कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बने। अब उसके 2 तरीके हैं।
एक रेगुलर तरीका है जिसमें हम पहले एनबीएफसी बने, फिर हम ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का अपना आरबीआई को दिखाएँ एंड वी ऑटोमैटिकली बिकम एलिजिबल एट अ लेटर स्टेज फॉर एसएफबी लाइसेंस। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम आज के दिन में ही अगर एक मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करके कि अगर कोई बैंक है जिसको हेल्प चाहिए, उसको सॉल्व करके हम आज की डेट में ही एक लाइसेंस एंटिटी बन जाए उस बैंक के थ्रू, दैट वाज़ द अदर रूट। तो हमको लगा कि अगर एक पीएमसी बैंक है और हम वहाँ पे आके किसी तरीके से मदद कर सकते हैं आरबीआई की और गवर्नमेंट की टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम आल्सो सॉल्व फॉर आवरसेल्फ इन गेटिंग द लाइसेंस मच अहेड ऑफ टाइम। सो उसके लिए हमारा इंटेंशन था टू बिड फॉर पीएमसी। What will a small finance bank give you? मतलब what else would you be able to offer to देखिए, your merchant आप base? सभी चीज़ें कर सकते हैं। आज हम क्यूआर के लिए 4 बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हैं। हमारे पास अपना बैंक आ जाएगा जिसके हम अपने अपने बैंक के क्यूआर लगा सकते हैं, राइट? हम अपने बैंक की वीज़ा मास्टरकार्ड मशीन लगा सकते हैं, हम अपने बैंक का कार्ड इश्यू कर सकते हैं, राइट? हम अपने बैंक का लोन दे सकते हैं, हम अपने बैंक का डिपॉज़िट रन कर सकते हैं। तो अ, अभी जिन जिन भी चीज़ों के लिए हम मल्टीपल लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वो पार्टनरशिप भी चलती रहेगी। इन एडिशन हम खुद भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ रिस्क या कुछ न्यू इनोवेशन जो पार्टनर करने में स्लो होता है, राइट? वो हम फास्ट कर सकेंगे बिकॉज़ सब कुछ हमारे पास इन हाउस आ जाएगा, राइट? सो एंड द अदर थिंग इज़ वी आल्सो फील फंडामेंटली कि इंडिया में किसी ना किसी को एफर्ट मार के एक नॉन ब्रांच डिजिटल बैंक का मॉडल को प्रूव करना पड़ेगा, राइट? एंड अगर हम वो कर पाए सक्सेसफुली तो एक टेम्पलेट बन जाएगा इवन फॉर आरबीआई एंड द गवर्नमेंट टू फील कंफर्टेबल अबाउट गिविंग अदर फिनटेक्स बैंकिंग लाइसेंस और अ प्योर डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस एज वेल बिकॉज वो होना तो है ही मतलब प्योर डिजिटल मतलब अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एटीएम्स इंडिया में कम हुए हैं पिछले 1 साल में नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हुई है राइट Because of consolidation. बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन एंड बिकॉज आपको यूज ही नहीं लगती क्योंकि अगर आज की डेट में आपके पास अच्छी ऐप है मतलब आप ये सोचिए यूपीआई से जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी कुछ फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन तो बैंक में जाके कोई चेक लगाता या कोई कैश विड्रॉल करता अगर इतनी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती तो उतनी तो कॉस्ट बैंक की बचाई है यूपीआई ने राइट तो हमको लगता है कि जैसे जैसे ये डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती रहेगी किसी के पास कारण नहीं होगा ब्रांच जाने का मतलब अगर आप आज देखें कि आपको खाना खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर करने के लिए आप डोमिनोज के आउटलेट थोड़ा ना जाते हैं आप जोमेटो की ऐप फायर अप करेंगे और अपना ऑर्डर करेंगे पिज्जा और अपना काम करेंगे राइट और वो आपको डिलीवर हो रहा है सिमिलरली बैंक जाके किसी को कुछ एडिशनल मिलता नहीं है वो तो मजबूरी है तो जाना पड़ता है राइट तो हमारा व्यू ये है कि क्या आप बहुत ही मिनिमल एक फिजिकल फुटप्रिंट रख के और मेजॉरिटी डिजिटल फुटप्रिंट रख के एक अच्छा प्रॉफिटेबल हेल्दी बैंक चला सकते हैं नहीं चला सकते उसको हमको एक्सपेरिमेंट करना है और प्रूव करना है और जब हम वो प्रूव कर देंगे तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे हम पूरी फिनटेक इंडस्ट्री के लिए करेंगे पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए करेंगे एंड वही इंटेंट है यहाँ पे Okay, okay. So, how many merchants do you have today now using Bharat Pay? So we have close to 60 lakh merchants acquired cumulatively till date. So, how did you scale वो 1,000 merchants जो आपने initially manual effort से acquire किए to getting 60 lakh merchants वो how did you build for scale? So build for scale बहुत सिंपल था यार हमारा तो हमेशा से फीट ऑन स्ट्रीट मॉडल रहा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी शहर में चले जाएं आपको ग्राउंड फ्लोर पे दोनों तरफ दुकानें ही दिखेंगी ठीक है तो अगर आपको सामने दुकान दिख रही है तो आप अपना एक एम्प्लॉय भेजिए और उन दुकानदार को कन्विंस करिए आपकी सर्विस वैसे ही फ्री है उसको लोन भी मिल सकता है वो ब्याज भी कमा सकता है वो इंश्योरेंस भी खरीद सकता है ये सब उसको एडिशनल फैसिलिटीज हैं तो आप इन पर्सन जाके बेचिए एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन मेरे को गूगल और फेसबुक को पैसा देने में थोड़ा मैं पीछे हटता हूँ उसके 2 कारण हैं एक तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाता है राइट आप जब भी इनके थ्रू एक्वायरिंग कर रहे हैं तो आप जो भी पैसा है बाहर जा रहा है सेकेंडली आप एक बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से उस कस्टमर को ढूंढ रहे हैं जो आपके सामने खड़ा है राइट हाँ तो तीसरा चीज क्या है कि मेरे को लगता है कि अगर आप
2000, 2500, 4000 एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करते हैं ऑन ग्राउंड, दैट इज मोर नेशन बिल्डिंग एज अगेंस्ट सेइंग कि मैं एक फेसबुक और गूगल की फैसिलिटीज एम्प्लॉय करके डिजिटली एक्वायर करता हूँ। तो आपको आप एक तो पैसा ज़्यादा खर्चेंगे, पैसा इंडिया से बाहर भी जाएगा और वो पैसा एक इंडियन एम्प्लॉय के काम आ सकता था टू मेक हिज लाइवलीहुड। सो उस कारण से हम वी आर ऑन फीट ऑन स्ट्रीट, यू नो, एंड वी कंटिन्यू टू बी प्रीडोमिनेंटली ऑन फीट ऑन स्ट्रीट। आई डोंट लाइक डिजिटल एक्विजिशन। हाँ, एक बारी मर्चेंट एक्वायर हो गया, उसके बाद जो सर्विस बेचनी है वो प्योरली डिजिटल होनी चाहिए, राइट? क्योंकि ऐप उसके फोन में है तो हाँ, ऐप फोन में डालना फिजिकल काम है। ऐप को उसके बाद यूज करना, चाहे वो P2P इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो लोन लेने के लिए हो, वो खुद से करना चाहिए। उसके लिए उसको किसी एजेंट पे या किसी बंदे पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। Hmm. So, what is the economics of the feet on street people? Like one person, each person, how many merchants does he add? सो इस बहुत ही सिंपल रहता है। कोई जो हमारे फीट ऑन स्ट्रीट है वो 20 से 25,000 रुपए महीना कमा सकते हैं, एंड उसको कमाने के लिए उनको एसेंशियली अगर आप देखेंगे तो 100 से सवा 100 मर्चेंट एक्वायर करने हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको दिन के 5 मर्चेंट भी लेके चलेंगे जिनको आप ढंग से एक्वायर करते हैं और जो प्लेटफॉर्म पे लाइव भी हो जाते हैं, तो वो होता है। उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ती है वो $3 या ₹200 पड़ती है, राइट? Which is one of the cheapest in the world, right? For acquiring either a merchant or a customer, right? So economics wise also it makes a lot more sense than doing things digitally. Hmm. ठीक है, got it. And you also did an ad with Salman Khan. So, what was the effect of that ad? How did that help? Or is that something which you will do more of, or it's a one-time thing and you don't need to do more of it? नो, मेरे को ब्रांडिंग को लेके मैं काफ़ी सीरियस हूँ, एंड उसका रीज़न ये है कि इंडिया में लोगों को लगता है कि एक B2B प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट या ब्रांडिंग नहीं चाहिए होती। मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि एक जो दुकानदार है उसका साइकी बहुत ही एक नॉर्मल कंज़्यूमर की तरह ही होता है, राइट? एंड देयरफॉर उसको भी वो कम्फर्ट चाहिए, उसको ये जानना होता है कि प्रोडक्ट क्या है, आप क्या हो, क्या आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेशली ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जब हम बहुत ही छोटी कंपनी थे, हमने 100 करोड़ से भी कम रेज़ किया था। हमने सलमान खान को तभी टाई अप कर लिया था, एंड उसका रीज़न सिंपल था कि इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट 2 चीज़ें हैं जो लोगों को काफ़ी अपील करती हैं। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि यार एक कौन-सा सुपरस्टार है जो ऑन द ग्राउंड शॉपकीपर के लिए एक अपीलिंग पर्सनैलिटी है, एंड उसमें हमारे सर्वे में सलमान काफ़ी ऊपर आए उन पे। तो हमने सलमान को 2019 में ही लिया था एज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर, एंड हमने एड्स बनाई जो कि काफ़ी फन एड्स भी थी, राइट? तो हमको हर चीज़ को मनी को लेके हर कोई ना बहुत सीरियस एड बनाता है, राइट? हमको लगता है कि मनी को लेके थोड़ा फन भी होना चाहिए, तो हमने काफ़ी फन एड्स बनाई थी, जो कि काफ़ी वेल रिसीव हुई मार्केट में, एंड ओवरनाइट हमारे को काफ़ी अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। जब सलमान का 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब हमने एक्सपेरिमेंट करा क्रिकेट से। सो अब हमारे पास 11 क्रिकेटर्स हैं, जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो कि एक काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, बिकॉज़ लोग नॉर्मली एक क्रिकेटर को ले लेंगे, या तो विराट कोहली को ले लेंगे या धोनी को ले लेंगे। हमने 11 क्रिकेटर्स लिए बिकॉज़ हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम टीम है, राइट? एंड पूरी टीम दुकानदार के पीछे खड़ी है, बिकॉज़ अगर आप एक दुकानदार का साइकी देखेंगे, उसको ये लगता है यार बड़े बिज़नेस में तो इतने एम्प्लॉइज़ होते हैं, इतने मैनेजर होते हैं। मेरे को सुबह शटर भी खुद ही खोलना है और शाम को शटर भी खुद डाउन करना है, तो मैं अकेला ही काम कर रहा होता हूँ। तो हमको उसको ये सेंस ऑफ फीलिंग देनी थी कि आप अकेले नहीं हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, तो हमने 11 प्लेयर्स की टीम बनाई। उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो अ, 11 के 11 क्रिकेटर्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आते हैं, तो आपकी अपील जो है वो पैन इंडिया हो जाती है, राइट? जैसे कि बॉलीवुड की अपील नॉर्थ, वेस्ट, अप टू अ बिट ईस्ट में काफ़ी अच्छी रहती है, बट साउथ की अपनी खुद की फ़िल्म इंडस्ट्री है, राइट? उनके खुद के सुपरस्टार्स हैं। तो थोड़ा-सा वहाँ पे साउथ तक जाते-जाते डाइल्यूट हो जाता है ब्रांड। हाँ, क्रिकेट का अपील जो है वो नेशनल है, राइट? तो हमारे पास केएल राहुल भी हैं जो बैंगलोर से हैं, राइट? हमारे पास संजू सैमसन भी हैं, राइट? अ अ
एंड हमारे पास रोहित शर्मा भी हैं, राइट? हमारे पास सुरेश रैना भी हैं। तो या तो उनकी ओरिजिनल सिटी से एसोसिएशन है या उनकी आईपीएल टीम से एसोसिएशन है। बट इन लोगों की एसोसिएशन काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुरेश रैना इज़ अ बिग नेम इन चेन्नई बिकॉज़ ऑफ चेन्नई सुपर किंग, राइट? तो 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 उस करके एक तो हमारे को पूरा पैन इंडिया एक बेस मिल गया जिसके जो हम अपना एक राइट एम्बेसडर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, क्रिकेट एज़ अ कैटेगरी स्टार्टेड बीइंग एसोसिएटेड विद भारत पे, राइट? बिकॉज़ अब कोई और ये करेगा नहीं क्योंकि हमारे पास 11 प्लेयर हैं। तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में क्रिकेट एज़ अ कैटेगरी हम मोनोपोलाइज़ करते हैं इन सम सेंस, राइट? इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। सो वो काफ़ी अच्छा हमारा एक मार्केटिंग कूल था कि 11 प्लेयर्स को ले लीजिए एंड ऑलमोस्ट हर दुकानदार को ये लगना चाहिए कि इंडियन टीम ही इनके पीछे खड़ी है। Okay, okay, that's amazing. So, what is, according to you, going to be like now growth drivers for Bharat Pay? Matlab, like, is it that keep hiring more feet on street because each feet on street gets you 100 merchants every month, and that is the way to grow the business. And out of those 100, 10 of them become monetizable. So, is that your vision on how to grow this further? Yeah, like, what do you see as the way to grow? हाँ, तो मैं व्हेन आई लुक एट इट मेरे को ये लगता है कि एक तो हम अब सिटी एक्सपैंड करने के मोड में आएँगे। तो अभी तक हम 100 सिटीज़ में पहुँच चुके हैं इनफैक्ट। तो 100 सिटीज़ से अब अगले 300 सिटीज़ में जाना इज़ आवर नेक्स्ट ग्रोथ वेक्टर। और उसके लिए हमारे पास एक हमारे टीम मेंबर हैं निशांत जैन, जो कि ज़ोमैटो में थे और उन्होंने पहले ज़ोमैटो को 100 से 300 शहर लेके गए थे। तो ही हैज़ जॉइन्ड अस 1 ईयर बैक एंड ही इज़ क्रिएटेड अ प्लान टू टेक अस टू 300 सिटीज़। तो एक उससे एक ऑटोमैटिक ग्रोथ आएगी। दूसरा है कि सिटी के अंदर ही हमको और डीपर रिलेशनशिप चाहिए मर्चेंट के साथ। सो अभी हमने एक रिसेंटली एक चीज़ लॉन्च करी है जिसका नाम है भारत पे क्लब, राइट? सो इट इज़ अ ₹1000 मेंबरशिप जो कि एक दुकानदार ले सकता है। और इस मेंबरशिप को लेने से उसको हमारे ईच ऑफ आवर प्रोडक्ट्स पे उसको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, राइट? तो अगर आप इसको सोचेंगे तो जैसे आपका ज़ोमैटो गोल्ड था जिसका काफ़ी अच्छा अपटेक हुआ था कंज्यूमर्स के लिए बिकॉज़ काफ़ी बेनिफिट था। उसी तरीके का एक स्कीम है जो कि प्योरली शॉपकीपर्स के लिए है, राइट? तो हमने रिसेंटली लॉन्च करा है मतलब 24 घंटे से भी कम हुए हैं, हम 3500 मेंबरशिप ऑलरेडी बेच चुके हैं। सो मेरे को लगता है उस मेंबरशिप को भी हम जितना बेचेंगे तो हमारी स्टिकीनेस विद द मर्चेंट बढ़ेगी, हमारा प्रोपोज़िशन बढ़ेगा और हमारी बिज़नेस विद द मर्चेंट देयरफॉर ऑटोमैटिकली बढ़ेगा। सो 3 ही चीज़ें हैं, नए शहर में जाएँ, एक्जिस्टिंग मर्चेंट के साथ डीपर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाएँ और तीसरा लेंडिंग को ग्रो करते रहें। सो ये 3 चीज़ें ही ग्रोथ लाएँगी। इसका क्लब मेंबरशिप में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? लाइक सम एग्जांपल्स, लाइक अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाँ, तो ₹1000 की जो मेंबरशिप है, उसके अगेंस्ट आपको ₹1000 तो अपफ्रंट ही मिल सकता है। उसके लिए आपको एक एक तो आपको एक बैट एंड बॉल मिलता है, राइट? जो कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर साइन बैट एंड बॉल है, जो खुद ही ₹500 के वर्थ का है। अ, इन एडिशन आपको एक कार्ड मिलता है स्पेंड करने के लिए। उस कार्ड पे हम ₹500 लोड करके देते हैं। सो आप फर्स्ट टाइम यूज़ जस्ट करेंगे। लाइक अ डेबिट कार्ड, मतलब यू कैन यूज इट ऑन एनी पॉस। इट्स अ प्रीपेड कार्ड, इट्स अ प्रीपेड कार्ड ताकि जो मर्चेंट के मनी विद अस है जो भी सेटल होना है अगर उसको सेटलमेंट से पहले ही यूज करना है तो वो उस कार्ड के थ्रू यूज कर सकता है। But it will work on any POS, like any Mastercard, Visa POS. एनी पॉस एनी एटीएम एंड ऑनलाइन एज वेल, राइट? तो वो एक है। फिर अगर आप हमसे लोन लेते हैं नॉर्मल लोन में हम आपको 2% प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं अपफ्रंट। हाँ, वो वेव हो जाती है। अगर आप हमसे कार्ड मशीन लेते हैं, वो कार्ड मशीन आपको नॉर्मली ₹5000 की पड़ेगी। इस मेंबरशिप में वो आपको ₹4000 की पड़ जाती है, राइट? अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे डालते हैं P2P अकाउंट में, तो आपको उसमें एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। सो अगर आप हमारे थ्रू बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 20% तक उसपे बिल पेमेंट पे ऑफ मिल सकता है। सो मल्टीपल चीज़ों पे हमने ट्राई करा है कि एक मर्चेंट को बेनिफिट मिले एंड कॉन्सेप्ट यही है कि एक बारी मर्चेंट खुद का ₹1000 लगाएगा, तो उसका इंटेंट आ गया, उसका खुद का इन्वेस्टमेंट आ गया एंड देयरफॉर ही विल हिमसेल्फ डीपन
हाउ मेनी प्रोडक्ट्स भारत पे के उसको यूज करने हैं। Got it. Okay, okay. And are you also planning to sell like wealth products, like mutual fund investment, insurance, and things like those? तो हम इंश्योरेंस सेल करते हैं। इनफैक्ट हम हर महीने 50 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम वर्थ का सेलिंग करते हैं। एंड हमारे कोविड के टाइम पे भी वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च कोविड इंश्योरेंस। तो अगर आप ₹250 का पॉलिसी लेते, आपको अगर कोविड पॉजिटिव निकलता, राइट? विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, नो क्वेश्चन्स आस्क्ड, द इंश्योरर वुड हैव पेड यू ₹25,000, राइट? जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा कोविड टाइम पे भी। अ, वेल्थ में मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को लगता है कि अभी वेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट मैच्योर नहीं हुई है, राइट? मेरे आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट P2P काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जहाँ पे उसको पता है कि ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को ब्याज टाइप कुछ मिलेगा, राइट? रादर देन स्टॉक मार्केट या कुछ फैंसी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, जिसमें उसको समझाना एक तो बहुत मुश्किल है कॉन्सेप्ट, और उसको रिटर्न भी शायद थोड़ा लोअर ही मिले, राइट? सो मेरे को लगता है कि मार्केट को ये है कि मेरे को एक फिक्स रिटर्न बता दो, आप कितना दे सकते हो, राइट? ताकि मेरे को क्लियर हो कि मेरे को अपसाइड पे कितना बनेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको अपसाइड नहीं बता सकते। आप बोलते हो कि आपका सारा डूब भी सकता है और अपसाइड पे आपका बहुत बन भी सकता है, बट कुछ क्वांटिफाई नहीं होता। सो आई हाँ, थिंक plus वो long term product है. वो This लॉन्ग would टर्म be short प्रोडक्ट term है। product. उसमें साइकिल्स होती हैं। आप हो सकता है अगले 6 दिन में मार्केट नीचे चले जाए, राइट? और हो सकता है उसके 1 महीने में मार्केट डबल हो जाए, राइट? सो बट एक जो ऑन द ग्राउंड शॉपकीपर है, उसके लिए इतना वेरिएशन को हैंडल करना, राइट? इट्स नॉट वर्थ हिज टाइम, राइट? उसको ये चाहिए कि यार मेरे को एक अच्छा ब्याज का प्रोडक्ट दे दो, जिसमें अच्छा ब्याज मिल जाए, राइट? दे आर मोर कंफर्टेबल देयर एंड आई थिंक therefore this segment P2P investments are much more pertinent than mutual fund. Okay. And what is the risk in the P2P investment? अगर default हुआ तो, like if the डिफॉल्ट हुआ तो उसमें भी उनका पैसा डूब ही सकता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि P2P इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होता, उसकी खुद की रिस्क होती है। बट but वो डिफॉल्ट कैसे मैप होता है? इज इट लाइक 1-to-1 मैपिंग के मैंने अशोक से पैसा लिया और अजय को दिया, तो अगर अजय ने पे बैक नहीं किया तो अशोक का पैसा डूब गया, और इज इट के वो एग्रीगेटेड? नॉर्मली आप जो बोल रहे हो लेमैन टर्म में 1-to-1 का वही मतलब होता है, बट इस केस में 1-to-1 नहीं होता है। इनफैक्ट 1-to-100 होता है, राइट? कि आपने जो पैसा दिया वो 100 लोगों पे मैप हो गया, एंड दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजी डज, राइट? कि कि अगर आप इसको एक रजिस्टर पे चला रहे होते, राइट? आपके लिए बड़ा मुश्किल होता कि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट में 100 लोगों के लोन के अगेंस्ट मैप करूं, राइट? बट टेक का मतलब ही है कि वो स्केल एट स्केल चीजें कर सकता है। सो हमारे P2P पार्टनर्स की जो टेक्नोलॉजी है, जो हमने उनके साथ बनाई है, वो एक लेंडर का पैसा 100,000 बोरोवर्स से मैप करती है, राइट? हाँ, तो दैट वे एक बोरोर ने नहीं भी पे किया तो वो एग्ज़ैक्टली, डाउनसाइड आपका कोई लिमिटेड है. स्पेसिफिक रिस्क नहीं रहता, राइट? ऑफ कोर्स अगर 1000 के 1000 डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, बट नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं, राइट? सो उस तरीके से काफ़ी एटलीस्ट हम इंश्योर करते हैं कि उनका पैसा मल्टीपल लोगों पे लगे, स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्क ना आए, राइट? आपका एक इंडिविजुअल का रिस्क 1% या 0.1% से के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज दिस लाइक अ स्वीप प्रोडक्ट कि मतलब आप जब चाहो उसमें पैसा डाल दो, जब चाहो निकाल दो, या नहीं, वो स्वीप आप तभी दे सकते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए कोई और खड़ा हो, राइट? सो अदरवाइज सी, जब आपका पैसा आएगा तब आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर आप स्वीप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड वो रिक्वेस्ट तभी ऑनर होएगी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए कोई और खड़ा हो, राइट? कि कोई और इन्वेस्टर अंदर आना चाहता है, आप बाहर जाना चाहते हो, तो आपको आपकी जगह उसको रिप्लेस किया जाता है, राइट? सो P2P की गाइडलाइंस, आरबीआई की बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस है, बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है, एंड जो प्रोडक्ट है उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर ऑपरेट होता है। okay, ठीक. So speaking of regulatory landscape, what do you feel are things which can help fintechs grow faster? Things which, if they were changed, like if those guidelines were changed, then companies would grow faster. नो, आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। एक तो मेरे को लगता है कि फॉर फिनटेक्स, राइट,
देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सल लाइसेंस, राइट? कि अगर आपने एक लाइसेंस ले लिया तो आप एक नॉर्मल एनबीएफसी भी चला सकते हो, आप एक P2P एनबीएफसी भी चला सकते हो, आप एक पेमेंट एग्रीगेटर भी बन सकते हो, क्योंकि अ, आज अब वो सिंपल चीज़ें नहीं रही कि एक फिनटेक है वो एक ही काम करती है, राइट? अ, हर फिनटेक मल्टीपल काम करती है। सो एक अगर यूनिवर्सल लाइसेंस हो, राइट? कि आप एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, उसकी थ्रेशोल्ड ज़्यादा होंगी, व्हिच इज़ फाइन, राइट? कि अगर एक नॉर्मल एनबीएफसी के लिए आपको 2 करोड़ का कैपिटल चाहिए होता है, आप एक लाइसेंस बना लीजिए जिसमें आपको 20 करोड़ का कैपिटल चाहिए, 50 करोड़ का कैपिटल चाहिए, दैट इज़ फाइन। बट अगर आपने एक बार ये अप्लाई करा तो आपको नॉर्मल एनबीएफसी लाइसेंस भी मिल गया, आपको P2P भी मिल गया, आपको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी मिल गया, आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया, राइट? सो दैट जो एनबीएफसी है वो एक्चुअली मार्केट में जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, उसके सॉल्व करने में अपना एफर्ट लगाए और लाइसेंस के लिए एक बार एफर्ट लगाए, एक हायर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ले एंड उस हायर थ्रेशोल्ड को एक ही बारी क्रॉस करे, हर बारी जाके हर हर 4 महीने, हर 6 महीने लाइसेंस के लिए ही ना भागते रहें, राइट? सो आई थिंक दैट विल हेल्प. The other thing I feel is कि fintechs can play a huge part in reducing frauds, right? Because जहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, राइट? एंड वहाँ पे हमेशा रिस्क लगता है कि यार हर कोई तो सही बंदा नहीं होगा, देयर अनस्क्रूपुलस पीपल हु वांट टू मेक मनी क्विक, राइट? एंड ऑल दैट. सो अगर हम एक सेंट्रल डेटाबेस बना लें, राइट? जहाँ पे हर फिनटेक अपना डेटा शेयर कर रही है कि यार ये कस्टमर था, इसका ये मोबाइल नंबर था, ये नाम था, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स थी, ये एक फ्रॉडुलेंट कस्टमर था हमारे बेस पे, राइट? तो अगली बारी दूसरा फिनटेक उसको ऑटोमैटिकली डीबार कर देगा, राइट? या अपने ऑटोमैटिकली उस पे चेक्स लगा देगा ताकि वो एक इंसान अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सेम फ्रॉड ना कर सके, राइट? एंड आई थिंक उससे वो एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस बनने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, राइट? लोगों में भी डर आएगा कि यार मैं एज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कहीं के किसी के साथ भी करूँगा ना, मैं सेंट्रली बैकलिस्ट हो जाऊँगा, राइट? तो आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं मेरे को जो लगता है काफ़ी फिनटेक को ग्रो कर सकती हैं। तो ये अभी क्रेडिट ब्यूरो में नहीं कैप्चर होगा, जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट ब्यूरो ये क्रेडिट ब्यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, बिकॉज़ सी ये दिस इज़ नॉट अ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट, राइट? दिस इज़ अ फ्रॉड, राइट? सेइंग कि आपने किसी कस्टमर से पैसे लिए, उसके गुड्स नहीं दिए या आपने उसको कुछ सोशल इंजीनियरिंग कर ली कि आपने एक्चुअली उसको पैसे देने थे बट आपने उसके बैंक से पैसे ले लिए, राइट? जो कि आप अगर ओएलएक्स जैसा प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, वहाँ पे ये बहुत प्रेवलेंट है, राइट? कि आपको बोला जाता है कि मैं आपकी चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, आप उस पे ओटीपी डाल दीजिएगा। बट ओटीपी डालने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज़ अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं, थोड़ी ना आपको किसी को ओटीपी देना है। वो आपसे ओटीपी डलवा के एक्चुअली आपके बैंक से पैसे ले लेते हैं, राइट? सो उस टाइप के फ्रॉड के को अवॉइड करने के लिए अगर आपने एक बारी पकड़ लिया कि एक बंदे ने ऐसा किया है, वो ब्लैक लिस्ट हो गया, तो फिर उसके बाद ऑल ऑल आवर फिनटेक्स हैव इनफ डेटा एनालिस्ट हू कैन पुट चेक्स इन प्लेस कि वो बंदा किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ऐसी हरकत ही ना कर पाए फिर से। हाँ। At the KYC stage only, there's a flag, like a red एग्ज़ैक्टली flag. केवाईसी स्टेज पे हो गया कि नहीं यार यू हैव अ रेड डॉट अगेंस्ट योर नेम इन द सेंट्रल डेटाबेस एंड देयरफॉर यू कैन नॉट अवेल ऑफ दिस सर्विस। उसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर कोई फ्रॉडस्टर है, हमने उसको रेड फ्लैग कर दिया, कल को फ्लिपकार्ट जाके भी बोल सकता है नहीं यार इसको हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे। ठीक है? तो सबकी कॉस्ट है ना वो, मतलब हर हर सिस्टम की एक फ्रॉड को प्रिवेंट करने की कॉस्ट होती है। वो हर कोई इंडिविजुअली बेयर कर रहा है। उससे बेटर है आप एक सेंट्रल डेटाबेस बनाओ, एक सेंट्रल सिस्टम बनाओ एंड सबकी कॉस्ट भी कम हो जाएँगी एंड फ्रॉड्स भी कम हो जाएँगे। बट ये थोड़ा पॉलिटिकली डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज वो प्राइवेसी कंसर्न्स एंड प्रिवेसी कंसर्न्स, सर देखिए मेरे को इंडिया में लगता है कि प्रिवेसी को लेके ना हम थोड़ा ज़्यादा ही यूरोपियन हो जाते हैं। जबकि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इंडियन है, ठीक है? ये एक तरफ तो हम इंस्टाग्राम पे अपनी दिन-रात की दिनचर्या पूरी डाल देंगे और दूसरी तरफ हमारे को प्रिवेसी लेके बहुत कंसर्न हो जाता है। सो मेरे मेरे को थोड़ा दोगलापना लगता है वो प्रिवेसी को लेके। एज़ एन इंडियन यू आर putting yourself out there every day, right? So don't overvalue your privacy. okay, cool. So any last messages that you want to leave aspiring founders with, people who are listening to the podcast and want to have their own startup one day?
आई थिंक मेरे को यही लगता है कि टू अगर आप अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं या आपको लग रहा है फाउंडर बनना है, आपसे अपने आप से एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों बनना है, राइट? फॉर एवरी सक्सेस स्टोरी वो 100 फेलियर स्टोरीज हैं, और वो 100 में से एक भी पॉडकास्ट पे नहीं आएगी, ठीक है? बिकॉज दैट डज नॉट मेक फॉर गुड हियरिंग, राइट? पीपल इनहेरेंटली आर ऑप्टिमिस्टिक कि उनको लगता है नहीं सब सही होगा लाइफ में, राइट? हाँ, सक्सेस बिकता है हाँ, बेसिकली। सक्सेस दिखता है एंड वो इसलिए सक्सेस दिखता भी ज़्यादा है, राइट? बट मेरे को ये लगता है कि आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? इज़ इट अ बिग इनफ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सेम एफर्ट है, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम पिक करना है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना है विल डिटरमाइन द सक्सेस स्केल ऑफ योर सक्सेस, राइट? अ, so I would rather try for something big and take a failure there because the success scenario में scale काफ़ी बड़ा मिलता है, right? तो प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए एक तो जो आप सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड, इंटेंशन ठीक होना चाहिए। लोगों को लगता है कि अरे बहुत ही फैंसी है, आपके पास इतने अरबों रुपए आते हैं, आपके पास इतनी बड़ी टीम होती है, राइट? वो सिर्फ ग्लॉसी पार्ट है जो दिखाया जाता है, राइट? असल में आपको यू नो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, राइट? आपकी हज़ार इनसिक्योरिटी होती है, राइट? एंड हर मंथ की अलग इनसिक्योरिटी है। आज मैं ये कहूँ कि अरे मैंने सीरीज़ डी कर लिया, मेरी लाइफ़ सेट हो गई, कुछ नहीं है, राइट? मतलब एक लेवल के बाद आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लग जाते हैं, आपको टाइम भी नहीं होता सोचने का या द फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ एन्जॉय करने का। सो it is a lot of hard work. It is a lot of pain. It is a lot of heartburn, right? You should be ready for everything, and don't be fascinated by only the good things that come with doing your startup, right? Be ready for the bad things because आपको नहीं पता कि शुरू में आपको गुड मिल दिखेगा, बैड दिखेगा। अगर आप गुड की एक्सपेक्टेशन से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आप बैड देख के डिसअपॉइंट भी जल्दी हो जाएँगे, राइट? तो थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा मेरे को ये है कि कोई रेस नहीं है, मतलब अ, हर एक को फाउंडर क्यों बनना है? हर एक को एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, राइट? आई थिंक वो एक थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट आ गया मार्केट में कि अ, लोगों को लगता है मैं अपने वो जैसे डॉक्टर की डिग्री होती थी ना, वैसा हो गया है कि भई मैं तो फाउंडर हूँ, राइट? बट डॉक्टर किस चीज़ का है वो तो बता, मतलब कोई पेशेंट भी है तेरे पास या नहीं वो तो बता, राइट? मतलब हर एक को अपने नाम के आगे वो डॉक्टर की डिग्री लगानी है, वो ऐसा बन राइट? टैग हो गया, मतलब टैग हो गया, कवर्टेड टैग। वो एक वो जैसे लिंक्डइन का टैग हो गया कि यार मेरे पास ये टैग है, तेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास ये स्टिकर है, तेरे पास नहीं है। मेरे को वो थोड़ा अनहेल्दी लगता है, राइट? मेरे को ये लगता है कि यार डूइंग अ जॉब इज़ अ ग्रेट थिंग। मैंने 15 साल जॉब करी है, मेरे को बहुत एन्जॉयबल लगता था। वो जॉब्स भी काफ़ी रिवॉर्डिंग होती हैं, राइट? एंड जब आपको फंडामेंटली दिल से आवाज़ आ रही हो कि नहीं यार मेरे को जॉब नहीं करनी, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और मैं राइट रीज़न से चीज़ कर रहा हूँ, सिर्फ़ तभी स्टार्टअप की तरफ आइए। सिर्फ़ वो टैग लगाने के लिए या कूल लगने के लिए या बीइंग अ कॉलेज ड्रॉप आउट इज़ द इन थिंग लगने के लिए जो करेगा ना वो मोस्टली फेलियर ही देखेगा, सक्सेस नहीं देख पाएगा। That was the inspiring journey of making Bharat Pay into one of India's fastest growing fintech companies. Do check out the Bharat Pay app from the App Store of your mobile to make and receive UPI payments. If you like the Founder Thesis podcast, then do check out our other shows on subjects like marketing, technology, career advice, books, and drama. Visit thepodium.in, that is thepodium.in for a complete list of all our shows.